Hello children, welcome again to your maths class. I am Poonam Bagga. Today we are going to start chapter 6 triangles from class 10th maths. This chapter basically deals with similar triangles and you all are very much familiar with the word similar. If I say that I have a pen similar to that you have, this means that the pen that I have is somewhat same to the pen that you have. Mind it, only somewhat same, not exactly same. This somewhat same character is being shown by the word similar. Same is the case with geometric figures. The geometric figures may be either congruent figures or similar figures. You have learnt about congruent figures in class 9th. These are those figures that have the same shape and same size. And so congruent figures are exactly same. You can see these two squares. These have the same length and so these are exactly same and we call them to be congruent squares. But in case of similar figures, we may have the same shape but the size may or may not be same, or in other words the sizes may be different. We can write here size may or may not be same. We have some squares with us. You can see they are of different sizes and so we can say that these are similar figures. Also, when we will be talking about congruent figures or similar figures, we will be taking two or more figures together at a time because here we are comparing the figures. अगर हम एक ही स्क्वायर लें और कहें कि ये सेम है तो आप पूछेंगे ना कि किससे सेम है, एक और फिगर चाहिए जिससे हम इसे कंपेयर करें. So as we will be talking about similar figures here in this chapter, we will be taking two or more figures together at a time. Also in case of congruent figures, if we overlap these congruent figures, suppose we overlap both these squares, you will see that these congruent figures on overlapping, they overlap each other perfectly. बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरह से cover कर लेते हैं, overlap कर लेते हैं because they are of exactly same size. But in case of similar figures, if we overlap any two similar figures, then you can see they will not overlap each other perfectly. This is the outline of the smaller figure and this is the outline of the bigger figure. तो यहाँ पर perfectly overlap नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर size में variation है. Now let us take some more examples of similar figures. Here we have two line segments of different lengths and so these are similar line segments. Any two line segments are always similar but they need not be congruent. इन्हें हम अभी congruent नहीं कह सकते. They are congruent if their lengths are equal. अगर इनकी length equal हो जाए तब हम इन्हें congruent line segments भी कह सकते हैं. But still here we can call them as similar line segments. Then any two or more circles are similar but not necessarily congruent. You can see these circles, all these are similar. And these are not congruent, they are congruent if their radii are equal. अगर इनके radius equal हो जाएं तो ये size में same हो जाएंगे, equal हो जाएंगे और तब हम इन्हें congruent कह सकेंगे. पर अभी हम इन्हें क्या कहेंगे? Similar figures. Then we have any two or more squares are similar. We have these squares, all these are similar as we discussed. Then any two or more equilateral triangles are similar. You can see these equilateral triangles are also similar. You may get a question in exam that give example of similar figures. So then you can give all these examples. Equilateral triangles are similar, then all squares are similar, all circles are similar. Same here, any two or more regular polygons are similar. A polygon is a figure made up of only line segments. Triangles, quadrilaterals, pentagon, hexagon, you have learnt about these. All these are polygons and by regular polygon we mean a polygon in which all the sides are equal. This is a regular hexagon and here we have some hexagons. All these are regular and also all these are similar shapes as you can see. Now one question arises कि क्या सभी regular polygons ही similar होते हैं या irregular polygons की अगर हम बात करें तो क्या सभी irregular polygons भी similar होते हैं या नहीं? The answer to this question is no. Some of the irregular polygons may be similar but they may not be similar. यहाँ पर एक question mark है और अब इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा वेट कीजिए. We will be discussing and coming back to this point in a short while from now. Let us now take one more example. Here we have some photographs. You can see these are same photograph but in different sizes. This is the stamp size, this is the passport size, this is the postcard size. So basically what we are seeing is that
In case of similarity, we have the same shape but in different sizes. आप देखिए सेम शेप है पर साइज डिफरेंट हो रहे हैं और ऐसे केस में हम कह रहे हैं similar figures. The main thing here is if a geometric figure is either stretched or shrinked without changing its shape, we get a figure similar to it. अगर हम एक geometric figure को stretch करें या shrink करें तो हमें जो shape मिल रही है एक्चुअली विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, तब हमें जो शेप मिल रही है वो सिमिलर होगी पहले वाली की. लेट अस टेक हियर, दिस इज अ हेक्सागन. इफ वी नाउ स्ट्रेच इट और वी से इफ वी नाउ जूम इन, नाउ यू कैन सी दिस इज द न्यू शेप and this is bigger in size, bigger than the original one, and so this is similar to the original one. If we now shrink it, अगर अब हम इसे stretch करने की जगह shrink करें तो अब देखिए साइज कितना छोटा हो गया पर है तो सेम शेप. सो दिस इज अगेन अ न्यू फिगर विच इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, द ओरिजिनल वन. सो एक्चुअली इन केस ऑफ सिमिलर फिगर्स वी हैव सम फिगर्स, one we can say that it is the stretched way or the other one we can say it is the shrinked one to the original one. So let us make it back to the original size, this one. So what we see here, that if a geometric figure is either stretched or shrinked without changing its shape, we get a figure similar to it. फिर से बात करते हैं यहाँ पर सिमिलैरिटी का क्या मतलब है. सेम शेप होगी पर साइज छोटा बड़ा हो सकता है, सेम भी हो सकता है, साइज सेम टू सेम भी हो सकता है, तब भी हम उन्हें सिमिलर फिगर तो कहेंगे ही. एक जैसे, सिमिलर मतलब क्या, एक जैसे फिगर्स, तो एक जैसे तो होंगे ही वो तब भी. तो या तो दोनों सेम साइज के हों या छोटे बड़े हों लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, तब हम उन्हें कहते हैं सिमिलर फिगर्स. गेटिंग इट? All congruent figures are similar but the similar figures need not be congruent. Let us go back to this figure. Just have a look at these two hexagons. ये दोनों exactly same size के हैं और इसलिए इन्हें हम congruent भी कह सकते हैं. ये similar भी हैं, आप देखिए ये similar भी हैं और इन दोनों को हम congruent भी कह सकते हैं क्योंकि ये same size के हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि सिमिलर फिगर्स के केस में अगर दो का साइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को, ये अलग अलग साइज के हैं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है. तो यहाँ कहने की बात यह है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को तो हम सिमिलर कह सकते हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट हमेशा नहीं कह सकते. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को तो हम हमेशा ही सिमिलर कह सकते हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स को हम हर बार कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते. अगर साइज छोटा बड़ा है तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? नहीं होंगे ना, तब तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं हुए. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर इन दीज टू पॉइंट्स. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस एग्जामिन सम फिगर्स एंड चेक वेदर दीज आर सिमिलर और नॉट. वी हैव दिस ट्रायंगल एंड देन दिस स्क्वायर. क्या ये सिमिलर है? आप देखेंगे ये तो शेप्स ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो ये सिमिलर नहीं है. शेप सेम होनी ही चाहिए. देन दिस पेयर, again a square and a circle, again the shapes are different altogether and so these are again not similar. Then we have these two shapes. Are these two figures similar? Here we can get confused. आप देखिए देखने से तो लग रहे हैं कि एक जैसे हैं, similar हैं, but we are not sure. We can say that these are similar but still we are not sure. What if we now rotate this figure? इसको rotate कर दिया, देखिए आप rotate करने से हमें ये figure मिल रहा है. अब तो हम और कंफ्यूज हो गए कि ये सिमिलर है या नहीं. हो रहे हैं ना कंफ्यूज. नाउ टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वी नीड सम डेफिनेशन और सम रूल फॉर सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स और से फिगर्स टू डिसाइड वेदर दीज आर सिमिलर और नॉट. एंड हियर वी हैव वन रूल. Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. यहाँ तो बड़ी बड़ी बात कह दी, दो बातें कही हैं. क्या है? दो पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम हो वही सिमिलर हो सकती हैं. ऑब्वियसली एक पेंटागन और एक हेक्सागन की सिमिलैरिटी की तो बात हम करेंगे नहीं. जब नंबर ऑफ साइड सेम होंगी दो फिगर्स की तभी तो हम चेक करेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं. तो पहली बात तो नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए और फिर आप देखिए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उन दोनों फिगर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए. देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन. इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. हियर वी हैव टू फिगर्स.
let us see what we have. This is quadrilateral ABCD and this is quadrilateral PQRS. Now look here, the corresponding angles are equal or not. What do you mean by corresponding angles? By corresponding angles we mean that the angle which is greatest in this figure should be equal to the greatest angle in this figure. इस फिगर का सबसे बड़ा एंगल क्या इस फिगर के सबसे बड़े एंगल के इक्वल है या नहीं, उन्हीं की तो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई 1 to 1. इसी तरह से इस फिगर का जो सबसे छोटा एंगल है क्या वो इस फिगर के सबसे छोटे एंगल के इक्वल है या नहीं. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब सबसे बड़ा वाला हम कंपेयर करेंगे सबसे बड़े एंगल से दूसरे फिगर से, और इस फिगर के सबसे छोटे एंगल को कंपेयर करेंगे इस फिगर के सबसे छोटे एंगल से, और इसी तरह से हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे. नाउ लुक हियर, दिस इज एंगल ए, इट इज ऑफ मेजर 105. हियर अगेन वी हैव 105 डिग्री एंगल पी. यहाँ एंगल बी 100 डिग्री है. हियर अगेन वी हैव एंगल क्यू मेजर 100 डिग्री. एंगल डी इज ऑफ 85 डिग्रीज. एंगल एस इज मेजरिंग 85, एंगल सी इज मेजरिंग 70 डिग्री, और एंगल आर भी है 70 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर angle A is equal to angle P equal to 105 degree. Then angle B is equal to angle Q equal to 100 degree. We have angle C equal to angle R measuring 70 degree, and angle D is equal to angle S equal to 85 degrees. तो ये हो गए corresponding angles equal. Also now we see here the second condition. देखिए first condition तो satisfy हो रही है, corresponding angles are equal. इस फिगर में आप देखिए we have taken all the corresponding angles and they are equal in this case. So the first condition is getting satisfied here. Now we move towards the second condition. Their corresponding sides are in the same ratio or proportion. जब दो ratios equal होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं proportion. So here we will be taking now the corresponding sides. अब corresponding sides क्या हुई, इस फिगर की सबसे छोटी साइड और इस फिगर की सबसे छोटी साइड, इनकी तुलना करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे. दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स. इसी तरह से इस फिगर की जो सबसे बड़ी साइड है और इस फिगर की सबसे बड़ी साइड है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्ड करेंगे. समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर इनका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि ये रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं. इस फिगर की सबसे छोटी साइड है ए बी और यहाँ से है सबसे छोटी साइड पी क्यू. इसका रेशियो लेंगे अगर आप तो 1.5 upon 3 and this will be 15 upon 30. This will be equal to 1/2. Next we take this side. यहाँ से ले रहे हैं BC और यहाँ से ले रहे हैं QR. Now just have a look. This is 2.5 centimeters long and this is 5 centimeters. Again if you remove the decimal, this will be 25 upon 50, again equal to 1/2. Similarly if we take now the ratio of side here CD and from here SR, this will be 2.4 upon 4.8, again this is equal to 1/2. Next if we take DA upon here SP, this is again equal to 2.1 upon 4.2. As you can see, this is 2.1, this is 4.2, and so this is again equal to 1/2. So what we see here, the ratio of the corresponding sides is equal every time. 1/2 आ रहा है चारों ही ratio. So they are in proportion. These sides are in proportion, the corresponding sides. And so now the second condition is also getting satisfied. Their corresponding sides are in the same ratio. देखिए आप, same ratio है. जब हम divide करके check कर रहे हैं तो सेम रेशियो आ रहा है. और आप अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो आप देखिए कि इसको स्ट्रेच किया गया फिगर को, और इस तरह से कि शेप तो नहीं बदली, तो शेप नहीं बदली तो एंगल्स तो सेम रहे, और ये जो लेंथ है साइड्स की ये डबल हो गई, 1.5 से 3 हो गई, 2.5 से 5 हो गई. तो इसको स्ट्रेच करके हमने डबल कर दिया है इसकी साइड्स को. या आप ऐसे समझिए कि ये जो लेंथ है साइड की, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एक नंबर से, जो कि यहाँ पर है 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नई लेंथ मिल गई हमें. तो वेन एवर वी विल बी मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ अ साइड बाय अ नंबर ग्रेटर दैन 1, तब तो हमें मिलेगा एक बड़ा फिगर, जो ओरिजिनल फिगर है उससे बड़ा फिगर मिलेगा जब भी हम इसकी लेंथ को जो मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से जो होगा 1 से बड़ा. अगर हम 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो ये फिगर है इससे छोटा फिगर मिल जाएगा हमें, और एंगल सेम होंगे तो वो छोटा होगा और सिमिलर होगा इस बेसिक फिगर की.
ठीक है, connecting it. Now we see here that the second condition is also satisfied. Their corresponding sides are in the same ratio. अब क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल PQRS के, लेकिन इसे मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? वी राइट इट हियर इन दिस वे. लेट मी मेक सम स्पेस. वी राइट दैट ABCD इज सिमिलर टू, अब आप देखिए दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी. सिमिलर फिगर्स को शो करने के लिए ये सिंबल लगाते हैं हम, और हमने फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल का नाम तो अपने मन से इजीली लिख लिया है. नाउ बट राइटिंग द नेम ऑफ द सेकेंड क्वाड्रिलेटरल वी विल हैव टू बी वेरी कॉशियस. बड़े ध्यान से लिखना होगा सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का नाम, क्योंकि हमें यहाँ पर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते हुए लिखना है. हमने देखा कि एंगल A इक्वल है एंगल P के, तो क्योंकि यहाँ हमने A को जगह दी है फर्स्ट प्लेस पे, तो जब हम यहाँ नाम लिखेंगे तो P को फर्स्ट प्लेस पे पोजीशन देंगे. देन वी टेक B. B है सेकेंड प्लेस पे, तो B इक्वल है एंगल Q के, तो सेकेंड प्लेस पे यहाँ आएगा Q. इसी तरह से C इक्वल है R के, तो C क्योंकि थर्ड प्लेस पे है तो थर्ड प्लेस पे हम लेंगे R. फिर यहाँ D इक्वल है एंगल S के, और D है फोर्थ प्लेस पे, तो S भी आएगा फोर्थ प्लेस पे, और हम कहेंगे ABCD इज सिमिलर टू PQRS. यहाँ पर हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का पूरा ध्यान रखा है. अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया कि ABCD इज सिमिलर टू QRSP, मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तब भी ये क्वाड्रिलेटरल का नाम तो आपने सही लिखा है. जस्ट हैव अ लुक, QRSP. इस क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं QRSP, लेकिन अगर हमने इसे सिमिलर लिख दिया ABCD के तब हमसे गलती हो जाएगी. ये गलत होगा क्योंकि इस बार हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान नहीं रखा है. यहाँ इसका मतलब हो गया कि A इज इक्वल टू एंगल Q, जबकि ये तो गलत है. एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल Q. देखिए ये 105 डिग्री है, ये 100 डिग्री है. A तो इक्वल है एंगल P के, तो जब हमने A को फर्स्ट प्लेस पे स्थान दिया है तो P को हमें फर्स्ट प्लेस देनी होगी, न कि Q को या किसी और लेटर को. तो ये नोटेशन बिल्कुल गलत है. दिस इज द राइट नोटेशन. तो ये जब हम सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का या जो भी फिगर होगा उसका नाम लिखेंगे तो बड़े सावधानी से नाम लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को देखते हुए. और अब अगर आप देखें यहाँ पर AB है और यहाँ पर है PQ. साइड्स की बात करें तो देखिए AB का रेशो लेते हैं PQ से. देखिए AB अपॉन PQ लिया है ना हमने यहाँ पर. फिर आप देखिए यहाँ से BC है और यहाँ से QR है. बिल्कुल BC और QR का रेशो लिया है हमने. यहाँ से CD और यहाँ से RS का रेशो. देखिए इधर CD और RS या कह लीजिए SR एक ही बात है. और फिर हमने लिया है इधर से AD. ये हो गया AD और यहाँ से PS, और देखिए AD और PS का रेशो लिया है. तो ये रेशो इक्वल आ रहे हैं. हमने देखा कि इस तरह से रेशो लेना है हमें साइड्स का और वो रेशो इक्वल आएगा. तो जब भी हम नाम लिखेंगे सिमिलर फिगर्स का तो हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का बिल्कुल ध्यान रखते हुए नाम लिखना है. और इस फिगर को देखिए आप, इस सिंबल को, ये सिंबल इसको हम रीड कैसे करते हैं? इज सिमिलर टू. तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ABCD इज सिमिलर टू PQRS. इसको इस तरह से रीड करेंगे. गेटिंग इट? नाउ व्हाट वी सी, one more remark is there. If one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to a third polygon, then the first polygon is similar to the third polygon. इसको समझते हैं. Let us take equilateral triangles. Let this be the first one, this be the second one, and this be the third one. Now, if this first figure is similar to the second one, first और सेकेंड सिमिलर है, हमें मान लीजिए दिया है वन पॉलीगन इज सिमिलर टू द अदर पॉलीगन, तो ये दोनों सिमिलर मान लिए. और सेकेंड पॉलीगन मान लीजिए ये वाला सिमिलर है थर्ड पॉलीगन के, इस थर्ड पॉलीगन के. फर्स्ट एंड सेकेंड दीज टू आर सिमिलर, सेकेंड एंड थर्ड दीज टू आर सिमिलर. तो अपने आप ही ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे. कौन कौन? फर्स्ट और थर्ड. ये फिगर्स भी सिमिलर होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि आप देखिए शेप तो सेम ही है. जब ये दोनों सिमिलर हैं तो साइज़ छोटा बड़ा है, शेप तो सेम है. जब ये दोनों सिमिलर हैं
तो शेप तो सेम ही है, साइज़ छोटा बड़ा है, तो अपने आप ही शेप तो सेम ही हो गई फर्स्ट और थर्ड के केस में भी, साइज़ छोटा बड़ा है तो क्या हुआ, सिमिलर तो हुए ही. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. इफ़ वन पॉलीगन इज सिमिलर टू अनदर पॉलीगन and this second polygon is similar to third one, then the first and the third are also similar. Now coming back to these conditions, one question again arises that are these two conditions both necessary to be satisfied or only single condition will be sufficient? क्या दिए हुए फिगर्स के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सिमिलैरिटी के लिए, या कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तब भी हम दोनों फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं? ये क्वेश्चन उठता है मन में. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकंड वन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो. तो हम केस लेते हैं, मान लीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं पर साइड्स सेम रेशो में नहीं है, तब हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं. दिस वन you can see in both these figures the corresponding angles are equal, 90 डिग्री हैं आप देखिए, लेकिन साइड्स का रेशो सेम नहीं है. यहाँ पर साइड लेते हैं अगर हम AB और इधर से साइड लेते हैं PQ, तो इनका रेशो देखिए 3/3.5, यहाँ से 3, यहाँ से 3.5. दिस विल बी 30/35, दिस विल बी 6/7. और अब अगर हम यहाँ से रेशो लें, ये लेंथ है AD और यहाँ से लेंथ लें SP, इनका रेशो लें तो 3 है ये और ये भी है 3 सेंटीमीटर. सो दिस रेशो विल बी इक्वल टू 1. तो नाउ वी आर गेटिंग डिफरेंट रेशोज. द रेशोज आर नॉट इक्वल in case of these two figures. Again you can see the ratio of these two sides will be 6/7 and the ratio of these two sides will be again equal to 1. So ratio every time it is not equal, and so here what we see that the first condition is being satisfied, corresponding angles to equal hai, but the second condition is not getting satisfied. The ratio of the corresponding sides is not equal every time. And now just check whether these figures are similar or not. You will see these are not similar. This is a square and this is a rectangle. ये shapes ही different हो गई हैं और ये दोनों similar नहीं हैं. तो जब हमारी पहली condition तो satisfy हो रही है पर second condition नहीं हो रही, तो ये figures similar नहीं हैं. No. Next we take the case where the sides are in the same ratio but the angles are not equal, the corresponding angles. We have this one. अब आप देखिए यहाँ पर sides तो same ratio में है, 2.1 का double हो गया 4.2 सेंटीमीटर. This one also got doubled 4.2. All the four sides have got doubled. 2 से multiply कर दिया तो ratio same है. आप ले लीजिए AB और यहाँ से PQ का ratio ले लीजिए 2.1/4.2. This is 1/2. So every time we are getting the same ratio between two corresponding sides. But now are the angles equal? देखिए ये है 90 डिग्री angles. और क्या ये angle 90 डिग्री दिख रहा है आपको? Obviously not. Again this is also not 90 डिग्री. तो angles equal नहीं है. Sides are in the same ratio. तो क्या अब दोनों figures similar हैं? देखिए आप. Again you will see this is a square and this is a rhombus. And these two figures are not similar. Similar नहीं है. तो similarity के लिए दोनों ही conditions fulfill होना ज़रूरी है, तभी हम कह पाएंगे कि दोनों figures दिए हुए figures similar हैं. Otherwise we cannot say the two figures to be similar. Both conditions are compulsory. Just have a look. These two conditions, दोनों ही conditions एक बार फिर से इनको recall कर लीजिए. Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. Getting it? After this, the question arises that the regular polygons are similar, but why not all irregular polygons also similar? Just take a case of rectangles. Rectangles को लेते हैं हम. Let this be one rectangle. Let the length be 2 units and breadth be 1 unit. एक और rectangle लेते हैं. अब इस केस में हम मान लेते हैं कि लेंथ है 4 यूनिट्स और ब्रेड्थ है 3 यूनिट्स. ठीक है. अब आप चेक कीजिए, ये एंगल्स तो सभी 90 डिग्री के हैं, तो एंगल्स तो इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. लेकिन अब आप साइड्स का रेशो लीजिए. यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि डबल हो रही है, 2 की डबल हो रही है 4,
तो रेशो हो गया 2/4 का 1/2। लेकिन यहाँ की साइड्स का रेशो देखिए, ये क्या आ रहा है 1/3। तो क्या ये रेशो इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर नहीं है। और रेक्टेंगल्स क्या है? इर्रेगुलर क्वाड्रिलैटरल्स हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं? रेगुलर क्वाड्रिलैटरल्स, जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो। और रेक्टेंगल क्या है? इर्रेगुलर क्वाड्रिलैटरल। तो आप ये केस देख ही रहे हैं जहाँ पर ये सिमिलर नहीं है। और ऐसे ही आप ये एक्सटेंड कर सकते हैं अदर पॉलीगन्स के केस में। सो एवरी टाइम रेगुलर पॉलीगन्स विल बी सिमिलर। एक बार हम स्क्वायर्स का भी केस ले लेते हैं। लेट अस टेक द केस ऑफ स्क्वायर्स ऑल्सो। दिस वन बी द फर्स्ट स्क्वायर, और ये एक और स्क्वायर ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सिंस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब इसकी साइड ले लीजिए 1 यूनिट, और इसकी साइड कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आप लेते हैं 4 यूनिट्स। दिस इज ऑल्सो 4 4 4 1 1 1। अब आप कोई भी साइड्स का रेशो लीजिए, 1:4 ही तो आएगा, क्योंकि साइड्स चारों ही आपस में इक्वल हैं। और कोई स्क्वायर भी ले लीजिए आप। चलिए एक और स्क्वायर लेते हैं, इसकी साइड हम मान लेते हैं इट इज़ 5, ठीक है। तो अब आप इसका रेशो लीजिए। अगर आप ये छोटे वाले स्क्वायर से इसको कंपेयर करते हैं तो रेशो हो जाएगा 1:5। अगर आप इसको इस वाले स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो रेशो हो जाएगा 4:5, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंड एवरी टाइम द रेशो इज ऑल्सो इक्वल रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर फिगर्स, जैसे यहाँ पर स्क्वायर क्या है? रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, ये सभी तो सिमिलर होते हैं। लेकिन इर्रेगुलर पॉलीगन्स जो यहाँ पर है, इर्रेगुलर क्वाड्रिलैटरल्स, रेक्टेंगल्स, ये सभी आपस में सिमिलर नहीं होते। कुछ केसेस में ये सिमिलर हो भी सकते हैं और कुछ केसेस में ये सिमिलर नहीं भी होंगे। सो एवरी टाइम all irregular polygons are not similar. Okay, now on the basis of all this discussion, one thing more, the important point is that either of the two conditions, first and second, of similarity of two polygons is not sufficient for them to be similar. ये वही बात कह रहे हैं कि सिर्फ एक कंडीशन का फुलफिल होना कंपल्सरी नहीं है, सफिशेंट नहीं है फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। दो फिगर्स सिमिलर होने के लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक अगर पूरी हो रही है तो दैट इज़ नॉट सफिशेंट। I hope all this is clear, what are similar figures and what is meant by similarity. Now on the basis of all this discussion, we start exercise 6.1 from your book. Here it is. Fill in the blanks using the correct word given in brackets. We have these blanks, we have to fill them using the correct option here. All circles are congruent or similar? Just tell me. All circles are similar. आपके आस पास आप कितनी सर्कुलर चीज़ें देखते होंगे, क्या वो सभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो ये हुआ कि सभी एग्जैक्टली बराबर साइज़ के हैं। तो हम आसपास जितने भी सर्कुलर चीज़ें देखते हैं, सर्कल्स देखते हैं, वो सभी आपस में एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होते। तो ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, पर हाँ सिमिलर ज़रूर कह सकते हैं। सो सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। अभी हमने डिस्कस किया था जितने भी स्क्वायर्स आप अपने आसपास देखते होंगे वो सभी बराबर साइज़ के तो नहीं हैं, तो उन सबको हम कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते, पर हम उन्हें कह सकते हैं सिमिलर, क्योंकि उनके साइज़ छोटे बड़े हैं तो वो सिमिलर तो है ही। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब यहाँ एक बार फिर से देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को देखते हैं। लेट दिस बी 1 एंड दिस बी द अदर वन। अब आप देखेंगे कि ऐसे केस में आपकी लेंथ कितनी भी हो, मान लीजिए ये है 2 यूनिट्स, एंगल्स तो 60 डिग्री ही रहेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में इसके भी सभी 60 डिग्री होंगे। तो क्या देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। अब आप साइड कितनी भी ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए मान लें, तो अब कोई भी दो साइड्स का आप रेशो लीजिए, एवरी टाइम यू विल गेट द रेशो 2/5। तो इस तरह से आप कितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले लीजिए। अगेन दिस इज द केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, तो आप देखेंगे कि ये सिमिलर हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल लीजिए, मान लीजिए वी हैव दिस वन एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद दीज 2 साइड्स इक्वल, एंड देन वी हैव दिस वन विद दीज 2 साइड्स इक्वल। अब आप देखेंगे कि ये जो एंगल्स हैं ये आपके 70 डिग्री हो सकते हैं, इस केस में ये आपके 50 डिग्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल्स अलग अलग हुए
तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं कहे जा सकते. सो वी कैन नॉट से दैट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वी कैन से दैट दीज आर सिमिलर. सो ऑल इक्विलैटरल triangles are similar. ठीक है. Next we have two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. बताइए, ये तो condition है similarity की कि अगर corresponding angles क्या होने चाहिए, equal. All corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. उनका ratio जो है वो इक्वल होना चाहिए. जब रेशो इक्वल होता है तो हम उन्हें कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन और दे आर प्रोपोर्शनल. सो दिस इज द केस. नेक्स्ट वी हैव गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड देन नॉन सिमिलर फिगर्स. तो सिमिलर फिगर्स अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, कोई भी दो लिख दीजिए. वी राइट देम हियर. फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. You can draw the figure also. ये ले लीजिए एक सर्कल, ये ले लीजिए एक और सर्कल. Then you can write second one, all squares are similar. आपको रेगुलर पॉलीगन्स का ध्यान रखना है जो सब तरफ से इक्वल हो, और आप फिगर भी बना सकते हैं दिस वन एंड दिस वन. तो इस तरह से सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. नेक्स्ट, नॉन सिमिलर फिगर्स. वी कैन राइट फर्स्ट वन, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस. अलग अलग शेप्स ले लीजिए, वो सिमिलर नहीं होंगी तो कोई भी दो डिफरेंट शेप्स ले लीजिए, आर नॉन सिमिलर. वी कैन ड्रॉ वन स्क्वायर एंड देन वी कैन ड्रॉ वन रोम्बस ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट वी टेक सेकेंड पार्ट. यू कैन टेक अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल. अलग अलग कोई भी दो शेप्स ले लीजिए, आर नॉन सिमिलर, और आप इनको फिगर भी ड्रॉ करके क्वेश्चन में दिखा सकते हैं. दिस इज अ रेक्टेंगल एंड देन वी कैन ड्रॉ वन सर्कल ऑल्सो. This is the case. Next we have question 3. State whether the following quadrilaterals are similar or not. Now just have a look. पहले हम sides देखते हैं जो दी हुई हैं क्वेश्चन में. This is 1.5 centimeter long. This is 3. 1.5 का डबल हो गया 3. Again 1.5 का डबल हो गया 3. Double and then double. So all the sides have been doubled in length. तो रेशो तो हमें सेम दिख रहा है. अगर आप यहाँ से रेशो लें PQ और यहाँ से रेशियो लें AB का, तो आपको क्या मिलेगा, 1.5/3. दिस इज इक्वल टू 15/30 इक्वल टू 1/2. तो रेशियो तो आपको हर बार सेम मिल रहा है. तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल एवरी टाइम. देन लुक एट द एंगल्स. ये हैं सभी एंगल्स 90 डिग्री के, पर क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नॉट. देन अगेन दिस इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो ये केस है नॉन सिमिलर फिगर्स का. दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर एंड सो वी कैन राइट हियर द गिवन फिगर्स have their corresponding sides in the same ratio, but their corresponding angles are not equal. Therefore, the two figures are not similar. I hope this is very much clear to you. You can remove this part or you may show the ratio also, it's up to you. So with this we complete
exercise 6.1, and we complete this topic. I hope you have understood very well that what is meant by similarity and how to examine whether the given figures are similar or not. In our next class, we will take up basic proportionality theorem. So, wait for the next class. Till then, goodbye.